Hello dear student, our today's topic is escape speed. Okay, so what is a meaning of escape speed? And you can say escape energy. Okay, for example, here suppose we consider it is a earth, right? And here it is gravitational field of a अर्थ, राइट. सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओके. सो सेंटर से ये डिस्टेंस होगा r, सो ये रेडियस है r e और ये हाइट है h. सो व्हाट यू कैन से r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, राइट. सो ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है उसको हमें ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है, राइट. सो फॉर दैट the minimum speed is required, so that minimum speed required is known as escape speed. What? This minimum speed required is known as escape speed, right friend? So here the definition of escape speed that we'll write, and then we start that escape speed is minimum speed with which a body must be projected vertically, upward in order that it may just escape, the gravitational field of the earth, राइट. मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड, जो मिनिमम स्पीड से हम फेंकते हैं उसको, देन इट विल एस्केप टू इनफाइनाइट, मतलब एस्केप टू ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट. सो दिस इज नॉन एज एस्केप स्पीड. व्हाट यू कॉल इट एज एस्केप स्पीड. सो फ्रेंड्स, सपोज हियर वी कंसिडर इट इज अर्थ, राइट. सो हियर it is a earth and we can say it is a gravitational area of the earth. Okay, here we consider it is gravitational area of the earth, right. तो ये gravitational field से हमें उसको बाहर फेंकना है, right. So here we can say that RE, that is a radius of the earth, okay, एंड यहाँ से हमें इनफाइनाइट पर भेजना है. तो सपोज हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट, ओके. सो हियर यू कैन से r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच कंसिडर करते हैं, फिर सरफेस के लिए h इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ओके. एंड यहाँ पर इट इज़ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बराबर. तो ये दोनों जगह पर अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन बोथ पॉइंट एनर्जी विल रिमेन सेम, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पर, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, और ये सरफेस पर, राइट. दोनों जगह पर एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके. सो इनिशियली हम कंसीडर करेंगे r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, ओके. इनिशियली वी विल कंसीडर r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच. सो हियर वी कैन से दैट इफ W1 is gravitational potential energy is
gravitational potential energy of the object at infinite, of the object at infinity, then the total energy, then the total energy at infinity, you can say total energy at infinite, that is W1 plus half m Vf square. You can say it is a final velocity, right? That is a potential energy plus kinetic energy, right? That is a half m Vf square. Okay. Next, object thrown with initial speed v1, or you can say it is a vi. Okay, you can say let vi, that is equal to initial speed of object at a distance. हमने क्या कहा था डिस्टेंस, r is equal to re plus h, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, तो यहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी रहेगी, यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी रहेगी. सो यू कैन से दैट total energy is given by, you can say total energy is given by E, r distance पर, that is what h plus re is equal to half m vi square. पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, एंड W1 वर्क तो है ही, राइट. यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ जैसे हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट यू कैन से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of energy, that is energy at infinite distance is equal to energy at h plus re distance. So what is the energy at infinite distance? You can say W1 plus half mvf square is equal to equation to half m vi square minus GMEM upon RE plus H plus W1, right. So here you can say W1 get cancel. Okay. Therefore, you can say half m Vf square, that is equal to half m Vi square minus GMEM upon Re plus H, right. So you can say it is equation number 3. Now अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक कंडीशन लेनी है, that left hand side is a positive quantity with minimum value 0 and so must be the RHS. मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर Vi की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि ये जो एनर्जी है, ये जो मतलब हमारी इक्वेशंस है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझे कि ये ग्रेटर देन और 0 का कंसेप्ट क्या है. ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर कोई भी हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज अ माइनस जी एम ई एम अपॉन आर. सो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस नेगेटिव साइन. So indication of this negative sign, this energy is bound. क्या है ये, बाउंड है, इसीलिए नेगेटिव है. अगर हम कोई अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में खड़े हैं, सो वी आर बाउंड विद दिस ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो अगर हम ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड है,
इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर हमें इतनी ही एनर्जी मिलेगी तो हमारे पर कोई भी फील्ड इफेक्ट नहीं होगा, देन वी आर इमर्ज फ्रॉम दिस फील्ड, गेटिंग इट। तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी बट पॉजिटिव टर्म में, ओके तो क्या होगा, इट विल एस्केप टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, एस्केप टू इनफाइनाइट। चलो दूसरा एक एग्जांपल, कि सपोज मुझ पर कोई डेप्थ है, राइट, सपोज 5000 का डेप्थ है, तो मेरी बैलेंस शीट में लिखा जाएगा -5000 रुपीज़, ठीक है। अब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 2000 दिए, राइट, देन दूसरे ने मुझे 3000 दिए, मतलब टोटल हुआ 5000, मैंने पे कर दिए, तो मेरा बैलेंस शीट हो गया नील। दैट मीन्स आई एम फ्री फ्रॉम एनी डेप्थ। तो वेरी सिमिलर टू, अगर इतनी ही एनर्जी मिलेगी जो नेगेटिव में है, देन इट विल फ्री फ्रॉम एनी दिस बाउंड, एनी बाउंडिंग, then it will escape to infinite, right? That means यहाँ पर कहेंगे हम कि the object can reach infinity, the object can reach infinity as long as Vi such that half mvi square minus gmem upon re plus h must be greater than or equal to 0। ओके, तो यहाँ पर हम मिनिमम एनर्जी क्या कहेंगे, देयरफॉर हाफ एम वी आई स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये है मिनिमम, दैट इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। क्या होगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ओके, यू कैन से फॉर surface of earth you can say h is equal to 0, therefore you can say half m v minimum vi minimum square that is equal to g m e m upon r e, so mm get cancelled, so you can say vi minimum that is equal to root of 2 GME अपॉन आर ई। क्या होगा, रूट ऑफ 2 GME अपॉन आर ई। यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो इट इज अ इक्वेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आर ई, दैट मीन्स क्या कहेंगे हम, 2 GME आर ई मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, दैट इज आर ई स्क्वायर हो जाएगा नीचे एंड मल्टीप्लाई विथ आर ई। नाउ सी हियर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अ जी ई। ओके, सो यू कैन से, बट हियर यू कैन से जी ई इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, सो यू कैन से रूट ऑफ 2 जी ई into RE, right? So it is the equation of VI minimum, that is what it is, the equation of escape speed, right friends? So here what is the escape energy? So minimum energy required, what is the escape energy? That is the minimum energy required, that is what G एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। और सरफेस के लिए सपोज हम h इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं, तो एस्केप एनर्जी हो गई आपकी जी एम ई एम अपॉन आर ई जितनी, राइट? सो इट इज़ योर एस्केप एनर्जी। एंड व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? सो यू कैन से एस्केप वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी आई its minimum value, that is root of 2 GME upon RE, root of 2
GE इंटू RE, राइट फ्रेंड्स। तो ये इक्वेशन है एस्केप वेलोसिटी के लिए। अब सपोज मैं GE की वैल्यू लेता हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सपोज वैल्यू ऑफ RE दैट इज द 6400 into 10 raised to 3 meter, right? Then the value of VI minimum, it is nearly equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, देन इट विल एस्केप टू इन्फाइनिटी। व्हाट? इट विल एस्केप टू इन्फाइनिटी, राइट। इसके बेस पर थोड़े सम देख लेते हैं, या फिर एक आप एग्जाम्पल कंसीडर कर लो। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैनेट हैविंग 3 टाइम रेडियस एंड 9 टाइम मास ऑफ द अर्थ। ओके, फाइंड इट्स वैल्यू ऑन प्लैनेट, इट्स मतलब किसकी वैल्यू? ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू on the planet having mass 3 time. Okay, that means mass of the planet 3 time mass of the earth and 9 time, sorry 3 time radius है and 9 time mass है। Make correction. Okay, see here, its mass is 9 time mass of the earth and its radius of the planet is 3 time the radius of the earth। okay, तो ये केस में हमें फाइंड करना है। so we can say that VE that is equal to root of 2 GME upon RE, and velocity for planet root of 2 GMP upon RP, right? Now what? Taking the ratio, that is a VP to VE. What is a VP? That is root of 2 GMP अपॉन RP। सपोज हम यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल है उसको एज इट इज रखते हैं 2 GME अपॉन RE। सो 2 कैंसल, 2 कैंसल, G कैंसल, G कैंसल। नाउ व्हाट यू कैन से MP। व्हाट इज MP? 9 ME। RP that is out what? 3 RE into RE upon ME। so ME cancel, RE cancel, 3 3 is 9। therefore you can say that here VP is equal to root 3 into VE, that is a root 3। what is the VE? 11.2 kilometer per second। so when you solve this, then 19.376 kilometer per second, right? तो ये एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जस्ट फोकस हियर। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? ये न्यूमेरिकल्स में काम में लगेगा। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी, टू project a body of mass m from the surface to the from surface to the of earth, surface of earth to infinity, right? तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे। सो हियर वी कैन से दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m
VE square, right? That is what? Half m root of 2g RE whole square. Okay, that is, you can say that half m into 2g RE, root and square root cancel, so you can say 2 get cancelled, so your answer is mg into RE. ओके, सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम डील कर सकते हैं.